شہر مکہ کا وجود میں آنا اور تعمیر مکہ، یہیں سے چلتے چلتے کچھ پوائنٹ کی چیزیں بھی ہم لوگ سماعت کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بچہ بڑھاپے میں اور بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد پیدا ہوا ہوگا، وہ بچہ ماں باپ کی نظر میں کتنا عزیز اور کس قدر زیادہ پیارا ہوگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھاتی اور پیار کرتے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی گود کو خالی دیکھ کر رشک کرنے لگیں۔ اسی وجہ سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے کہیں دور مقام پر چھوڑ آئے۔ اصل میں راز و حکمت ہے شہر مکہ کے وجود میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ معظمہ کی تعمیر کا۔ جی بظاہر لگے کہ کچھ بڑے لوگ، عظیم لوگ، بظاہر لگے کہ یہ تو غلط بات ہے، تو دیکھیے بظاہر لگتا ہے کہ غلط ہے وہ، لیکن در حقیقت اس میں بھی بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیے وہ بھول، جسے دنیا چاہے لوگ غلطی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے وہ غلطی نہیں ہوئی ہوتی، جسے بھول کہتے ہیں۔ اگر وہ بھول نہیں ہوئی ہوتی تو آپ دنیا میں نہیں بھیجے جاتے، دنیا میں نہیں بھیجے جاتے تو ہمارا وجود تک نہیں ہوتا۔ جی فواز صاحب وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور بھی لوگوں سے گزارش ہے، اتنے بھی لوگ جڑے ہیں تھوڑا سا آپ لائک بھی کر دیں گے، اور ساتھ میں گزارش یہ ہے کہ آپ سبسکرائب بھی کر لیں، کیا بولتے ہیں، لائک کر لیں، سپر چیٹ بھیجتے رہیں۔ آپ میں تو لگ بھگ ہیں۔ تو ہر کام میں حکمت ہوا کرتی، تو بڑوں سے بظاہر کچھ دکھے تو ہمیں اس کی تعبیر ہی کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر بظاہر لگ رہا ہے کہ حضرت سارہ کو جلن ہوئی اور آپ نے کہا کہ ان کو بھگا دیجئے کہیں دور، لیکن ذرا سوچے اگر آپ نے حضرت حاجرہ اور سارہ کو وہاں بھیجا نہیں ہوتا تو زمزم کا پانی آج لوگوں کو ملتا؟ آج نہیں، صبح صبح قیامت تک کے لیے ایک زمزم جو نعمت عظمیٰ ہے وہ کیا لوگوں کو میسر ہو پاتا؟ صفا اور مروہ کے لوگ چکر لگاتے نہیں لگاتے، پر یہی مرضی الہی، رب یہی چاہتا تھا تو یہی معاملہ ہوا۔ تو آخرکار آپ نے کیا کیا، آپ کو تو شہر مکہ کے وجود میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ معظمہ کی تعمیر کا یہ حکمت، اس لیے اس میں بہت زیادہ نہ مستی کرنی چاہیے کہ ان کو بھی جلن تھی، آخر وہ بھی عورت تھی، دیکھا آپ نے عورتوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، یہاں پر رک کر کے لوگ اب شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ وہی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین پر چھوڑاؤ جو اب مکہ معظمہ کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ پوائنٹ کی باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مزمل صاحب آپ تھوڑا فون اٹھا لیجئے فواد بھائی کا۔ تو آپ نے وہاں چھوڑ آئے تھے آپ، اور پھر وہاں کا بھی کیا معاملہ ہوا ذرا آپ سماعت کریں، دل خوش ہو جائے گا۔ اور وہاں پہ رک کر کے ایک عورت کی برائی کرنے سے بہتر ہے کہ آئے میں آپ کو ایک عورت کی ہمت اور جسارت بتاؤں۔ صفا اور مروہ کا جو چکر ہے، آج لوگ کہتے ہیں، بہت ایسے عقیدے والے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ والوں کو نہیں ماننا چاہیے، ان کی اداؤں کو نہیں اپنانا چاہیے۔ یقین جانیے کہ حج در حقیقت کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے اللہ والوں کے، اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے، ان کے جو انہوں نے کیا اسی طرح کرنے کا نام جو ہے حج ہے۔ آئے دیکھیں قیامت تک ایک عورت کی سنت کو انسان ادا کرتا رہے گا، وہ کیسے ہم سماعت کرتے ہیں۔ تو وہی نازل ہوئی تو آپ جو ہے لے آ کر وہاں پہ چھوڑائے۔ وہ جو پہلے سنسان جگہ تھی، سنسان بیابان، دن میں بھی لوگ جانے سے اکیلے گھبرایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام سے مکہ معظمہ کے نزدیک اس مقام پر چھوڑا جہاں آج زمزم کا چشمہ ہے، وہیں پر چھوڑا تھا آپ نے۔ یہاں
उस वक्त ना कोई आबादी थी, ना कोई चश्मा, ना सायादार दर्ख्त था, कुछ भी नहीं, सुनसान बयाबान रेगिस्तान। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी नेक बख्त बीबी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक तोशादान खजूरों का और एक बर्तन पानी का देकर वापस तशरीफ ले आए। कुछ खजूरें थी और कुछ पानी। तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आवाज दी, जब वापस होने लगे तो आपने आवाज दी और अर्ज की कि ऐ मेरे सरताज, आइन तज़हब व ततरुकना बिहाज़ल वादी अल्लज़ी लैसा फ़ीही इंसुन वला शैउन। यानी कि ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं और हमें इस वादी में अकेले और तन्हा छोड़कर, जिसमें न कोई इंसान है और न ही कोई चीज है, आप छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं? हमको आपने कोई जवाब नहीं दिया और नहीं तवज्जो फरमाई। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चंद मरतबा यही सवाल किया मगर कोई न आया। तो अर्ज की, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह ताला के हुक्म से आप मुझे इस वादी में अकेले और तन्हा छोड़ के जा रहे हैं? है ना, हर बार तो पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया। इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, आप भी समझ गए कुछ मामला है। तो आपने कहा कि क्या ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का है? फिर आपने कहा कि हाँ, मैं अपने रब तबारक व तआला के हुक्म से ऐसा कर रहा हूं। अब आए देखें, यहाँ पर एक बात सुने। दुनिया की औरतें होती, नॉर्मल औरतें होती तो कहती अच्छा ये कौन सी बात है, कैसे नबी हैं आप हैं, और ये किस जो है किस खुदा को आप मानते हैं? मैं नहीं मानती ऐसे खुदा को। कैसी कैसी बातें बक दें और वो ये कहे कि साहब जरा एक बात बताइए, कैसे हो सकता है कि हुक्म हो? अरे छोड़ने का हुक्म होता था, इतने सारा का हुक्म होता, उनके पास कोई औलाद भी नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, उसे भूख लगे तो मैं कहाँ से उसका इंतजाम करूंगी? मुझे छोड़ने का हुक्म हो रहा है, मैं नहीं मानती इस हुक्म को, मुझे आपके साथ नहीं रहना। तरह तरह की बातें, नया मामला था, सब नमरूद को खुदा मानते थे, वो कह देती कि मैं नहीं मानती ऐसे खुदा को, है इससे बढ़िया नमरूद है। दुनिया भर की बातें हो सकती थी, लेकिन आए देखें, आपने औरत होने का हक अदा कर दिया और कयामत तक के औरतों की एक मिसाल दे दिया कि रब की रजा में ही राजी रहनी चाहिए। और अपने शौहर के जो हालात हैं, शौहर के ऊपर बहुत बढ़िया पॉइंट अभी ज़हन में आया, ले लीजिए। शौहर की आजमाइश पर औरत को सब्र करना चाहिए, चाहे वो गुर्बत के एतबार से हो तब भी उसका साथ दे, है ना, और चाहे क्या बोलते हैं, चाहे बीमारी हो तब भी उसकी खिदमत करें। हर हाल में औरत जो है अल्लाह का शुक्रिया अदा करें और इसी तरह होगा कि वो शौहर के हालात पर वो राजी रहे। आए देखें, आपने यही किया, हजरत हाजरा ने यही किया साहब। क्या किया? पहले पूछा कि चंद दफा तमाम बातें रखी, एतराज पे एतराज था, कैसे छोड़ के आप जा सकते हैं? आप जो बच्चा है मेरे पास, ना यहाँ पर सुनसान, यहाँ सुनसान वादी है, ना इंसान है, ना कोई चीज है, आप कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हैं? आप कई मर्तबा कहा आपने, आखिरकार आपको खुद समझ में आ गया कि मामला लगता है कि अलग है। तो आपने कहा क्या ये हुक्म अल्लाह का है? आपने कहा हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। अब आए देखे आपका जवाब था क्या था। आप उसके बाद हज़रत हाजरा जवाब देती है, ये कह देती है, इज़ल ला युज़ीउना रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व अलैहि तवक्कलतु। सुभान अल्लाह। आप कहती हैं कि जब रब ताला का हुक्म है तो फिर कुछ खौफ नहीं, अल्लाह ताला खुद ही हिफाजत फरमाएगा, उस पर मेरा भरोसा है। भरोसा किसी दुनियादार पे नहीं, भरोसा मुझे परवरदिगार पे। जाए आप आराम से जाए, अब कोई फिक्र नहीं मुझे। अब तक कैसी बातें कर रही थी कि खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, सुनसान वादी है, कोई दरिंदा आ गया, मेरे साथ क्या होगा, मैं अकेली हूँ, कमजोर हूँ, औरत जात हूँ, मेरे साथ छोटा बच्चा है, कितनी बातें। लेकिन जैसे मालूम चला कि ये मर्जी इलाही है, अब कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। वो वादी जहां वक्त का रुस्तम भी, ताकतवर से ताकतवर इंसान भी दिन में अकेले जाने से घबराता था, आपने असर बाद मगरिब का वक्त होने वाला था और आप छोड़कर वापस आ रहे थे। तो आपका जवाब क्या था? आप जाएं, मुझे अपने रब पे भरोसा है, रब पे भरोसा है।
रब मुझे कुछ नहीं होने देगा, मेरे बच्चे को रब कुछ नहीं होने देगा। इसे तवक्कुल कहते हैं, इसे भरोसा कहते हैं, इसे उम्मीद कहते हैं, इसे यकीन कहते हैं, इसे रब से मोहब्बत करते हैं और इसे अपने शौहर की फर्माबरदारी करते हैं। बास दफा ये जुमला समाप्त कर लें, कई मरतबा हालात ऐसे होते हैं, शौहर सबके किस्मत एक तरह नहीं होती है, जिंदगी एक तरह नहीं होती है। तो बाद शौहरों का ये भी तो मामला है कि अल्लाह उसे आजमाइश में रखता है, तो अब उसे ताने न दें बल्कि खुश रहें और साथ दें, बेफिक्र रहिए, कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान ना हुआ करें, अब मेरा काम चल जाएगा, है मेरे पास ये सामान, मेरा काम चल जाएगा। ये नहीं कि बेजा शौहर परेशान है फिर भी हम डिमांड पे डिमांड, हमारा डिमांड अनकम्प्लीट ना हो, चाहे सामने वाले को किडनी बेचना पड़े, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए जी। हाँ, ये है असल मामला। तो आप खुश हो गए और कहा कि मुझे मेरे रब पे बड़ा भरोसा है, बड़ा भरोसा है साहब, बड़ा भरोसा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चलते वक्त दुआ की, लेकिन हाँ अगर से रब का हुक्म था, लेकिन जब बीबी के कलिमात सुने तो आपके जज्बात में और ये था कि पता नहीं मुझे हुक्म दिया गया, फरमा बरदार बीबी मिली तो आपने दिल से दुआ भी की अपनी बीबी के लिए, ऐसा थोड़ी है। फरमा बरदारी थी ठीक है, लेकिन लगाओ तो अपनी औलाद से, जो बुढ़ापे में मिले अपनी बीबी से लगाओ तो ठीक। तो फिर आपने क्या किया, जाते वक्त आपने दुआ की, जो 13वें पारे के रुकू नंबर 18 में है। दुआ आपने क्या की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रमी रब्बना लियुकीमुस्सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समवाति लअल्लहुम यशकुरून। आपने दुआ की, दुआ क्या है कि ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद एक नाले में बसाई जिसमें खेती नहीं होती, तेरे हुर्मत वाले घर के पास, ऐ मेरे रब, इसलिए कि नमाज कायम करें तो तू लोगों के कुछ दिल उनके तरफ मायल कर दे और उन्हें कुछ फल खाने को दे, शायद वो एहसान माने। यानी आपने दुआ की कि मौला तेरी रजा के लिए मैंने ऐसी जगह पे छोड़ दी है जहाँ कोई नहीं है, लेकिन हाँ मौला तेरे पाक घर के पास मैंने छोड़ा है, तो मौला आप ऐसा कर दे कि वो नमाज कायम करें और कुछ लोग उधर आ जाएं ताकि वो अकेले ना रहें, वो भी आबाद हो जाएं। ये आपने गोया की दुआ की और यही मामला हुआ। आब जमजम का चश्मा कुछ दिनों तक हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन खजूरों और पानी से गुजारा किया और अपने फर्जंद को दूध पिलाती रही। जब वो पानी खत्म हो गया, प्यास की शिद्दत हुई और छाती से दूध खुश्क हो गया, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का हलक मुबारक प्यास की शिद्दत से सूख गया। नन्हे शेरखार बच्चे की जान जाने का खतरा पैदा हो गया। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी की तलाश में पहले सफा पहाड़ी पर तशरीफ ले गईं। ये मुझे याद दिलाना है पॉइंट, रुक करके आगे कि हज कहते किसे हैं, है देखें आप। तो तशरीफ ले गई और चारों तरफ नजर किया मगर किसी तरफ भी पानी नजर न आया। सफा पहाड़ी से दौड़ी और मरवा पहाड़ी पर तशरीफ लाई और चारों तरफ देखती रही कि पानी कहीं मिल जाए, मगर किसी तरफ भी पानी का नामो निशान तक न मिला। इसी तरह जैसे हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 7 मरतबा सफा से मरवा पहाड़ी पर दौड़ी और अब पलट पलट कर अपने शेरखार बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ भी देखती रहती कि कोई जो है तकलीफ देने वाला जानवर, मूसी जानवर, तकलीफ देने वाला जानवर मेरे बेटे को नुकसान न पहुंचा दे। और जब भी नजर करती तो देखती थी कहते इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ और पैर हिल रहे हैं। मगर जब 7वीं मरतबा पहाड़ से हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल को देखा तो उनके कदमों के रगड़ने की जगह साफ शफाफ पानी का चश्मा उबल रहा। सुभान अल्लाह। समाप्त करते हैं आगे। तो बताना ये है कि हज में जो ये अराकीन है, और ये भी मैंने सुन रखा है, सद्दाम भाई गवाही देंगे, वो होंगे कि जब आप इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास से जब जाती तो थोड़ा धीरे धीरे जाती, लेकिन जब दूर जाती जहां से इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं दिखते तो फिर जल्दी जल्दी आप चलती थी ताकि जल्दी से देख करके फिर मैं अपने बेटे के पास आ जाऊं। तो जाती भी फिर आके अपने बेटे को देखती भी थी।
अल्लाह तबारक व तआला को यही अदा पसंद आई। ये यकीन जानिए, अल्लाह तबारक व तआला को यही अदा पसंद आई है। जी बहुत एक पॉइंट ये भी सुन लीजिए, यकीनन बज़ाहिर देखा जाए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ने की जगह से पानी का चश्मा जारी हो गया। लेकिन जरा बताएं, ये रगड़ना किस बुनियाद पर हुआ? रगड़ना इस बुनियाद पर भी हुआ कि एक माँ जो है अपने बेटे के लिए परेशान हो रही थी, तड़प रही थी कि मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा प्यासा है, मैं कैसे उसके लिए इंतजाम करूं। तो ये अदा अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दे दिया कि कयामत तक जब तक कोई हज या उम्रा करने के लिए आए तो पहले मेरी बंदी हजरत हाजरा की सुन्नतों को जिंदा करे। आप सोचे, हजरत हाजरा उस वक्त चक्कर इसलिए लगाई थी कि पानी की तलाश में, पानी दूर दूर तक नहीं था। आज ये हाजी और उम्रा करने वाले लोग क्यों चक्कर लगाते हैं सफर मरवा का? आज तो पहले तो चलो कुआं ही जमजम का पानी से पानी निकाल लोग पीते थे। अभी सद्दाम भाई वगैरह है, ये बताएंगे कि आज तो हर जगह टोटियां लगी हुई हैं जमजम के पानी की, बताते हैं लोग। तो आज क्या जरूरत है चक्कर लगाने की? दर हकीकत यही मामला है कि तुम मेरे नेक बंदों की अदों को अपनाते रहो, मैं उसे इबादत करार दे दूंगा। सुभान अल्लाह, मैं उसे इबादत में शुमार कर लूंगा, मैं उसे इबादत का सवाब दे दूंगा। है तो ये एक मामला है जो रह गया। और रहा जमजम का भी मामला, तो किसी शायर ने, आशिक ने क्या ही बेहतरीन जवाब दिया है कि दर हकीकत इस्माइल अलैहिस्सलाम के तड़पने से माँ तड़प रही थी, और जब माँ तड़पी है तो फिर जमजम का पानी निकला है। शायर ने कहा है कि जब बेटा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, जब बेटा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, लेकिन जब माँ तड़पती है तो जमजम निकलता है, जब माँ तड़पती है तो जमजम निकलता है। जी हाँ, एक ये भी इसको रख सकते हैं कि यकीनन वहां पर माँ की वो तड़प भी काम आई थी। और फिर कहते इस्माइल अलैहिस्सलाम, आप देखें ना, अगरचे इस्माइल अलैहिस्सलाम के क्या बोलते हैं एड़ियों से जमजम का पानी निकला, लेकिन जो चीजें मशहूर हुई वो हजरत हाजरा की। क्या? सफर मरवा का चक्कर लगाना, ये हाजरा ने लगाया था, हजरत हाजरा ने। और इसका नाम जमजम रखा किसने था? जमजम का मतलब पानी थोड़ी होता, अलमाओ मतलब पानी होता है। तो जमजम इसका नाम क्यों पड़ा? कुछ भी नाम पड़ सकता था, जमजम क्यों पड़ा? वो इसलिए कि जब आप वापस आई तो देखा कि पानी बह रहा है। तो आप कहते हैं ना कि कोई किसी चीज की कदर वही जाने जो बड़ी तकलीफ और बड़ी परेशानियों के बाद वो नेमत मिली हो। तो आपने जब देखा कि पानी बह रहा है तो आपकी जुबान से बस गैर इख्तियारी निकल गया, जमजम। ठहर ठहर बोलते नहीं, रुक जा रुक जा। हालांकि पानी सुने नहीं, लेकिन वो इंसान बोल देता है जज्बात में आकर के, कई बार बोलता है। तो यही मामला था, आपने बस बोल दिया जम जम, रुक रुक, ठहर ठहर। बस अल्लाह को ये अदा भी पसंद आ गया, है ना। कोई पहले से प्लानिंग नहीं कि ये नाम, इसका नाम रखा जाएगा। बस मेरी बंदी ने इसे जमजम कह दिया है, अब कयामत तक लोग इसे जमजम ही कहेंगे। वरना इसका लफ्ज़ी माना है, लोग भी माना ठहर ठहर। हम इसे ठहर ठहर क्यों कह रहे हैं? जिसे पीना हम कह रहे ठहर ठहर। आपने तो कहा था ताकि वो पानी बह रहा था, तो आपने कह दिया जमजम ठहर ठहर। हम क्यों कह रहे ठहर ठहर? लाओ ठहर ठहर वाला पानी है, लाओ ठहर ठहर वाला पानी ले आओ, रुक रुक वाला पानी ले आओ। जमजम का यही माना है। तो यकीनन दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला को अपने नेक बंदों की अदाएं बड़ी पसंद आती हैं कि वहां पर जितनी चीजें हैं सब किसी न किसी की सुन्नत है, किसी नेक बंदे की सुन्नत है। कंकड़ी हम मारते हैं, आगे बात आएगी क्यों मारते हैं साहब। आप भी कहेंगे हजरत अब इतना तो हम भी जानते हैं। दर हकीकत जब आप ज़बह करने जा रहे थे तो शैतान आपको बहका रहा था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकर मारा। जरा एक बात बताएं, उन्होंने मारा इसलिए कि उस वक्त जो है वहां पर शैतान था, आपने उसे मार के भगाया। क्या अब भी वहां पर शैतान है? क्या अब भी वहां शैतान है? इतना पत्थर, कुछ बहाजे लोग जूता चप्पल भी मार देते हैं, हो तो भाग जाए वो, लेकिन क्यों
फिर क्यों मारते हैं? इसलिए कि अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई। अब सुनो, वहां शैतान दिखे ना दिखे, शैतान वहां हो या ना हो, तुम्हें मेरे नेक बंदे की सुन्नत को अदा करना है। ये चीजें हैं। अरफात में सारे लोग इकट्ठा होते हैं, क्यों? वहीं पर थे आदम और हवा मिले थे, जब जन्नत में आए थे तो आप यहाँ सरानदीप में यहाँ उतारी गई थी और आप वहां पे जिद्दा पहाड़ पे उतारे गए थे। तो कितने दिनों तक भटकते रहे। फिर उसके बाद जो आपकी मुलाकात हुई थी वो अरफा के मैदान में। अरफा यारिफो से पहचान बनी वहां, यानी कि वहां आपने पहचान लिया था, तो वहीं पर मुलाकात हुई। अब उसको जिंदा किया जा रहा है। आजकल देखिए आप लोग यूट्यूब वगैरह पे क्या मंजर है, वो सिर्फ सर भी नहीं दिख रहा है। और ये याद रखें, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा बिछड़ी थी तो वही मिले थे। हम सब भी बिछड़े हुए हैं, कहाँ। कल बरोज़े महशर यही पर हिसाब किताब होगा। तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं साहब। हाँ, संग असोद को बोसा दिया जाता है, क्यों? इसलिए नहीं कि जन्नती पत्थर है, इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बोसा दिया है। तो मेरे फारूक कहते हैं कि ऐ संग असवद सुन, अगर मैं तुझे इसलिए बोसा नहीं देता कि तू जन्नती है, मैं तुझे इसलिए बोसा देता हूं कि मैंने अपने महबूब को तुझे बोसा देते हुए देखा है। हाँ, अब आए और भी कुछ चीजें इंशाल्लाह आगे आएंगी तो मैं बात करूंगा। संगे असवद ही से शुरू किया जाता है और वहां पर आने के बाद हुक्म है कि सलाम पेश किया जाए। ऐसा क्यों है? जरा बताएं, संग असवद के पास ही ऐसा क्यों है? दरहकीकत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। बात आगे तो बता रहा हूँ, आगे मैं बात कुछ बता रहा हूँ, ये खुद भी कुछ बता रहे हैं, ऐसे बात आगे कहीं भूल ना जाऊं। वो उसकी वजह ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं उस पत्थर को भी जानता हूँ जो मेरे ऐलान नबूवत से पहले मुझे पहचाना करता था। यानी अभी ऐलान नबूवत नहीं किए थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई नहीं जानता था अरब में कि ये नबी है। उस वक्त जब भी आप कभी उम्रा करने या हज करने जाते तो जब संग असवद के पास से जाते तो उस पत्थर से आवाज आती, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तब एक पॉइंट देखें कि वो पत्थर जो मेरे महबूब पे सलाम पेश करे तो उसे ये इनाम मिल जाए कि कयामत तक लोग उसे बोसा दे रहे हैं। तो जो इंसान मेरे नबी पर सलाम पेश करे तो क्या वो इंसान बाकमाल नहीं हो जाएगा? सफा और मरवा को निशानी क्यों बनाया गया? तो फिर क्या हुआ वहां पे देखें जी, बात वहीं से चश्मा उबल रहा था। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ती हुई आती हैं और पानी के चश्मे के चारों तरफ रेत और मिट्टी रखकर पानी को रोकती हैं और कहती जाती हैं, जम जम, यानी ऐ पानी ठहर जा। है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस पानी को जमजम यानी ऐ पानी ठहर जा ना कहती तो ये पानी सारी दुनिया की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी होता है ना। लेकिन आपने भाई कीमत वही जाने, आपने देखा पानी बह रहा तो आप जो है गोलाई में से बना दिया और आपने ठहर भी कह दिया। ए ईमान वालों, हकीकत में जमजम कोई नाम नहीं है। देखिए बातें हैं, ये कोई नाम नहीं है। जमजम के माने ठहर जा, और ये कोई नाम नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला की नेक बंदी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जुबान मुबारक ने इस पानी के मुतालिक जमजम फरमा दिया, तो अब कयामत तक के लिए इस पानी का नाम जमजम ही पड़ गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। गोया नेक बंदे या नेक बंदी की जुबान से जो लफ्ज निकल जाता है उसे अल्लाह तबारक व ताला मकबूल बना देता है। जी है कि नहीं? ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सफा पहाड़ी से मरवा और मरवा पहाड़ी से सफा तक दौड़ना इस कदर पसंद फरमाया कि सफा और मरवा पहाड़ी को अपनी निशानी करार दे दिया है ना। आप जरा देखें, दुनिया में बहुत सारे
पहाड़, बहुत सारे पहाड़ हैं, लेकिन इस पहाड़ का मर्तबा इस पहाड़ी का मर्तबा अलग है। इससे बड़े बड़े पहाड़ है, दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ ये अपने बगल नेपाल में है। लेकिन और भी बहुत सारे पहाड़ है, हिंदुस्तान में बहुत पहाड़ होंगे, हम जो उसका नाम नहीं जानते, लेकिन दुनिया के बच्चा सफा और मरवा को जानता है। उसे कभी देखा नहीं फिर भी वो जानता है। हमने देखा नहीं पर हम उसे जानते हैं। जरा बताएं उसको ये पहचान कैसे मिल गई? इसलिए कि दौड़ एक माँ ने लगाई थी और वो अदा अल्लाह को पसंद आ गया। तो दौड़ भी कयामत तक के लिए रब ने कर दिया। उस पहाड़ी को भी मशहूर कर दिया कि तेरे जिस्म पर, तेरे ऊपर मेरी एक नेक बंदी दौड़ी है, अब मैं जो है तुझे भी कयामत तक के लिए मशहूर कर दूंगा। और सिर्फ मशहूर नहीं, कुरान शरीफ में तुझे महफूज भी कर दूंगा। इन्न सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। पारा नंबर 2 रुकू नंबर 3, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से, अल्लाह की निशानियों में से दौड़ लगा है हाजरा ने, और निशानी अल्लाह उसे अपना निशानी बता रहा है, यानी अपने नेक बंदों के अदाओं को अल्लाह अपनी निशानी बता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा आपने जी? इसलिए कि इन दोनों पहाड़ों पर सफा और मरवा को निशानी क्यों बनाया गया? इसलिए कि इन दोनों पहाड़ियों पर अल्लाह ताला की नेक बंदी का कदम पड़ गया। इसलिए अब वो जगह आम जगहों से मुमताज होकर अल्लाह ताला की निशानी करार दी गई। इसलिए कि उस पहाड़ पर किसके कदम पड़ गए? अल्लाह की एक नेक बंदी का, अल्लाह की एक नेक बंदी का। तो औरत ये न समझे कि इस्लाम ने हमको मकाम नहीं दिया है, और तो हुई है ऐसी बाकमाल जिनको इस्लाम ने बड़ी इज्जतें दी हैं, जिसमें आप भी हैं। हजरात, जब कदम पड़ गया तो जगह बरकत और रहमत वाली हो गई। तो जिस कब्र की अजमत व बुजुर्गी और रहमत तो उस कब्र की अजमत और बुजुर्गी, रहमत व बरकत का आलम क्या होगा जिस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा या नेक बंदी आराम कर रहे हो, है ना? समझा नहीं सदाम भाई? जरा बताएं कि जिस पत्थर पे, जिस पहाड़ पे अल्लाह के नेक बंदों का पैर पड़ जाए तो वो बरकत वाला हो जाए, तो जिस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा या नेक बंदी आराम फरमा हो, फिर वो इज्जत वाला क्यों ना हो जाए, उसकी कद्र क्यों ना की जाए? जी बिल्कुल, औरत ने जो इज्जत दी है वो कोई जो है मजहब एक औरत को इज्जत नहीं दे सकता है ना? ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप कि जिस पहाड़ पर, सफा मरवा कोई रख लीजिए कि उस पहाड़ पर एक नेक बंदी अल्लाह की कदम रख दी तो अल्लाह ने उसे अपनी निशानी करार दे दी। तो जिस कब्र में अल्लाह के नेक बंदे हों तो क्या वो बरकत वाला नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और फिर तुरबते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व बरकत का अंदाजा कौन लगा सकता है, जिसमें खुद महबूब खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमाए। इसलिए आशिक मुस्तफ़ा हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पेश नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अल्लाह ताला को अपने नेक बंदों का दौड़ना इस कदर पसंद आया कि हर हाजी को कयामत तक के लिए सफा और मरवा के दौड़ के दरमियान दौड़ने का हुक्म दे दिया गया, ताकि दुनिया वाले मेरे महबूब और नेक बंदों के कदर व मंजिलत को पहचान ले और जान ले कि मेरी नेक बंदी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा तो जरूरत के वक्त दौड़ी थी, लेकिन आज हर हाजी सफा और मरवा के दरमियान बगैर जरूरत दौड़ते हैं। और यही अल्लाह ताला का हुक्म भी है, ताकि मेरी नेक बंदी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत बाकी रहे और उनकी दौड़ने की वो अदा जिंदा और जारी रहे। और किसी हाजी ने अगर किसी हाजी ने हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस सुन्नत पर अमल नहीं किया, यानी सही नहीं की, तो उसका हज मुकम्मल
نہیں ہوگا. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. آب زمزم کی فضیلت. اے ایمان والو, آب زمزم بڑی فضیلت و برکت والا ہے. زمزم کے پانی کو انبیاء کرام اولیاء اعظام نے نوش فرمایا ہے. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, اس کی فضیلت اور برکت کو اپنی مبارک زبان سے بیان فرمایا. حدیث پاک میں ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے ڈول سے زمزم پیا اور باقی جو بچا اسے زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. ڈال کر آب زمزم کو مزید برکت والا بنا دیا. سبحان اللہ, زمزم تو برکت والا ہے ہی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نکالا, پیا, اور پینے کے بعد جو بچا لبوں سے لگا, اس مصطفیٰ سے لگے ہوئے لب کا وہ پانی بھی اسی زمزم میں آپ نے ڈال دیا, تو وہ اور برکت والا ہو گیا. پہلے سے تو برکت والا تھا ہی, میرے مصطفیٰ نے لبوں سے لگا لیا, اب وہ اور برکت والا ہو گیا. زمزم کا معاملہ یہ ہے, اس کی اتنی برکت ہے کہ کوئی بھوکا انسان بھوک کی نیت سے پی لے تو اس کا بھوک مٹ جائے, یعنی پیٹ بھر جائے. یہ معاملہ ہے. زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پینا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. تبرک کے طور پہ لے جانا یہ بھی سنت ہے. آب زمزم جس مقصد سے پیو گے کامیابی ملے گی. زمزم کا پانی, آب زمزم کی فضیلت پہ کتاب ہے, پڑھ لیجئے نا تو بس اسی وقت دل ڈھونڈنے لگتا ہے کہ زمزم کا پانی مل جائے. برکات زمزم یا برکات آب زمزم ایسا کچھ ہے. میں بہت ہی ڈرا گیا ہوں. برکات آب زمزم ایک کتاب ہے, میں مدرسے میں پڑھا تھا, اور یقین جانیے جب میں پڑھا تو بس جی چاہتا کہ کب مل جائے اور اسے پی لیا جائے. بڑی اچھی کتاب ہے, موقع ملے تو پڑھیے گا. ابھی بس ہیڈنگ بتا دے رہا ہوں, اب مکمل کر رہے ہیں اس کو. یہ والی بات جو آپ نے دعا کی تھی کہ اے مولا میں اپنے اولاد کو یہاں چھوڑ جا رہا ہوں تو اسے آباد کر دے, تو آخر میں وہ معاملہ ہوا. بس یہی سماعت کر لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہوئی. قبیلے جرہم کے کچھ لوگ تجارت کے غرض سے ملک شام جا رہے تھے. راستہ وہی تھا, دیکھا کہ کچھ پرندے منڈرا رہے ہیں, یقیناً اس جگہ پانی ہے. جب قریب آئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے, اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ ہے. قبیلہ جرہم کے لوگ سنسان جنگل میں تنہا عورت اور اس کی گود میں بچے کو دیکھ کر حیران اور جو ہے پریشان تعجب میں پڑ گئے, اور دیکھا کہ اس خاتون کے قریب صاف اور شفاف پانی کا چشمہ جاری ہے. تو قبیلے کے لوگوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے اس جگہ قیام کرنے کی اجازت مانگی. سبحان اللہ, دعا قبول ہوئی لیکن اجازت منگوائی جا رہی ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت عطا فرما دی. وہ سب آباد ہو گئے اور اس طرح مکہ معظمہ کا شہر وجود میں آیا. معارج النبوہ کے صفحہ نمبر 339. اور ابھی تو کیا